we are going to start with the next video. And again, I'm going to introduce you, we are going to discuss about the Mendel and his research, his approach towards genetics. In the previous video, I had to just uh, close that video too early before explaining this because there was some disturbance on my part, so I'm sorry for that. But let's continue with that previous video. And as I was discussing about the Mendel's approach, that why was he using the mathematical and probabilities and statistical analysis was done, because you see here he conducted hybridization, okay, experiments for 7 years, as I already told you, and he applied statistical analysis and mathematical logic for biology. Okay, now this was very new in the stream of biology, because large sampling size, greater credibility to data. Now, because he had given large samples, so when he went out to prove his theory, when he came out to the world to prove whatever he had studied or whatever he had found, this was a plus point on his part, that he had large samples. Now, because he had large number of sample to prove his idea or to prove his theory, this gave credibility to whatever he was saying. So people wanted to agree to whatever he was saying, because he had a proof in front of them, and the proof was not of 2 or 3 or some hundreds, but the proof he was showing to the world was in large quantity. So that gave credibility to that data. Okay. Then experiments, true breeding P lines he had used, as I already told you here, 7 contrasting characters were used to make the world understand whatever theory he wanted to give. So confirmation of inference from experiments on successive generations of test plants proved general rules of inheritance. Now, how was he confirming whatever he was finding out, whatever results जो भी वो निकाल रहा था, जो भी inference था, जो भी उसका conclusion था, result था, उसको confirm करने के लिए वो काफी सारे टेस्ट कर रहा था, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशंस में चल रहे थे, जिससे कि उसके रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रूव हो जाते थे. ठीक है. एंड ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, एनसीईआरटी में भी आप अपने सामने देख सकते हो, मैंने आपको पेज खोल कर रखा हुआ है आपके सामने, कि मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू opposing traits. Example, tall or dwarf, yellow or green seeds. This allowed him to set up the basic framework of rules governing the inheritance, which was expanded on by later scientists. So general thought जो मैं already discuss कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ. ठीक है. Mendel now conducted such artificial pollination or cross pollination experiments, such several true breeding pea lines. Now true breeding pea क्या होती है बेटा? ट्रू ब्रीडिंग वही होते हैं जो होमोजाइगस होते हैं, जैसे कैपिटल टी, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ले ली, और ड्वार्फ में हमने ले ली स्मॉल टी. तो वो जब भी यूज करता था कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो ट्रू ब्रीडिंग पी की वैरायटी यूज करता था. अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन, अंडरलाइन करेंगे आप ये लाइंस को, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट इज हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन. तो जब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा? वेरिएशंस कम होंगी या ना के बराबर होंगी, क्योंकि वही गमीट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, उसी का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहा है, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहा है. तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर बार बार होती है तो हमें हर बार वही प्योर लाइन मिलती रहेंगी. तो मेंडल की कोशिश यही होती थी कि जब भी वो कोई प्लांट लेता था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ही लेता था जो सेल्फ पॉलिनेट करे, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में दूसरे गेमीट्स का मिक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं.
ठीक है. So Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which was similar except for one character. अब इस लाइन का क्या मतलब है बेटा, देखो. It means that Mendel ने एक प्लांट लिया, ठीक है, दो प्लांट्स लिए, प्लांट ए एंड प्लांट बी, एंड दोनों प्लांट्स में बाकी सारी चीजें सेम है, बस एक कैरेक्टर उसने डिफर करा. सपोज की हाइट का कैरेक्टर है, तो एक प्लांट जो है वो टॉल है और दूसरा प्लांट ड्वार्फ है, बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है वो सेम है. क्यों किया ऐसा उसने? क्योंकि एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना आसान है. अगर मेंडल चार पांच कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी करता तो उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इट विल बिकम अ मिक्सचर. तो उसने क्या किया, उसने बाकी सारे कैरेक्टर्स को सेम रखा, बस एक कैरेक्टर को डिफर करा. ऐसे करके उसने सेट्स बनाए, प्लांट्स के सेट्स बनाए, ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के. Some of the contrasting character traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, smooth or inflated pods, green or yellow pods, and tall or dwarf plant, जो कि इस टेबल में दिया हुआ है. So this was how Mendel tried to start his experiment, जो उसने करा. ठीक है, उसकी अब आपको समझ आ गया होगा ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी क्या है, एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्योर लाइन. ओके. Now, children, you see here contrasting traits again. There in this page, they were showing it as in the form of pictures, and now they have shown you here stem height, tall or dwarf, flower color white or violet or white, flower position axial or terminal, pod shape inflated, constricted, pod color green, yellow, seed shape brown, wrinkle, seed color yellow and green. So the seed petal, stigma, anther, you understand all the diagrams, I suppose. Now, inheritance of one gene. Next topic is inheritance of one gene. Let's see to this. Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. So only one gene that he is considering here. Only one gene that he is considering here is which one? The gene of height, the gene which is representing height of the plant, right? So what he did is he collected the seeds produced as a now what he did is when he crossed a tall pure line tall with pure line dwarf, he got first generation, right? First generation was F1 generation. It is also known as filial 1 progeny or F1 progeny. Now, whatever first generation result was, उसने क्या किया, उसने उन प्लांट्स को उगाया, उनको बड़ा किया. ठीक है. अब मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द F1 progeny plants were tall. तो उसने जब बड़ा करा, ऑफ कोर्स अब जब क्रॉस कर दिया है, जस्ट सोचो बच्चों इस बात को कि जब उसने दो पेरेंट्स क्रॉस किए, प्योर लाइन टॉल को प्योर लाइन ड्वार्फ के साथ जब उसने क्रॉस किया और उसको F1 हाइब्रिड मिला, F1 जनरेशन मिली, तो उसे उनका बड़ा होने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि ये प्लांट टॉल हुआ या ड्वार्फ हुआ, है ना. तो F1 प्रोजेनी को उसने बढ़ने दिया वेट करने के लिए कि वो देखे कि रिजल्ट क्या आता है. तो उसका रिजल्ट क्या था, उसने देखा कि F1 प्रोजेनी के सारे प्लांट्स, फर्स्ट जनरेशन के सारे प्लांट्स टॉल थे, लाइक द वन जो कि एक पेरेंट से मिलता जुलता है. कौन से पेरेंट से मिलता जुलता है? जो टॉल पेरेंट था उससे. यानी जो F1 जनरेशन के जितने भी बच्चे थे, जितने भी प्लांट्स थे, सब एक ही पेरेंट के ऊपर गए, दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर उनमें आया ही नहीं, है ना. कोई भी ड्वार्फ नहीं हुआ. तो he made several observations for the other pairs of traits. ऐसे ही उसने, जैसे उसने टॉल हाइट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, यही एक्सपेरिमेंट उसने पॉड के कलर पे भी किया, यही एक्सपेरिमेंट उसने फ्लावर कलर या फ्लावर पोजीशन पे किया. सारे 7 कैरेक्टर्स को उसने F1 जनरेशन तक
क्रॉस करके रिजल्ट देखा और सब में रिजल्ट सेम था। क्या रिजल्ट था सब में? सबका रिजल्ट यही था कि फर्स्ट जनरेशन जो थी वो सारी की सारी एक ही पेरेंट से रिजेंबल करती है। ठीक है, सारी की सारी फर्स्ट जनरेशन एक ही पेरेंट को रिजेंबल करती है। और ये देख के वो बड़ा हैरान था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब मेंडल देन फिर उसने क्या किया, फिर उसने सोचा कि अब मैं ऐसा करता हूं, F1 जनरेशन से मैं दो प्लांट्स लेता हूं, F1 जनरेशन के दो प्लांट्स लेता हूं और अब उनको सेल्फ पॉलिनेट करता हूं। ठीक है, तो उसने F1 जनरेशन का प्लांट लिया और उसे सेल्फ पॉलिनेट कराया। ठीक है, कोई और प्लांट के साथ नहीं, उसको सेल्फ पॉलिनेट कराया। तो वो हैरान रह गया। इट वॉज टू हिज सरप्राइज दैट F2 जनरेशन, नाउ द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन वॉज दैट एक कैरेक्टर उसको ड्वार्फ भी मिला, यानी एक कैरेक्टर उसको सेकंड पेरेंट का भी मिला F2 जनरेशन में। अब मेंडल बहुत हैरान था। मेंडल ने सोचा कि ये ड्वार्फ F2 जनरेशन में कैसे आ गया, F1 जनरेशन में तो ये आया ही नहीं, और F2 जनरेशन में ये कैरेक्टर जो था वो दिख रहा है, तो ये कैसे हुआ? इसका मतलब ये जो कैरेक्टर है जो F1 जनरेशन में तो नहीं आया बट F2 जनरेशन में आया, ये कैरेक्टर जरूर कैरी फॉरवर्ड हुआ बट F1 जनरेशन में नजर नहीं आए, है ना? तो मतलब यही है, इट वॉज नॉट सीन, it was not seen in the F1 generation, it was seen in the F2 generation. Okay, but because it was now seen in F2 generation, it proves that it was carried from F1 generation to F2 generation, and then it got expressed in F2 generation. So what was the proportion? The proportion was out of four plants. The proportion was out of four plants, or whatever the number of progeny was, all were tall. Only 1/4 was dwarf. 3/4 of the F2 plants were tall, and 1/4 of the F2 generation was dwarf. This was the result of second generation. So the tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. ऐसा भी कोई प्लांट नहीं आया जो आपस में ब्लेंड हो गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई मीडियम हाइट का निकल आया, ऐसा भी कोई प्लांट नहीं था। अगर प्लांट, 4 प्लांट्स थे तो 4 में से बेटा 3 जो थे वो टॉल थे और एक जो था वो ड्वार्फ था। ऐसा कोई प्लांट नहीं निकला जो मीडियम हाइट का था, यानी आपस में ब्लेंडिंग नहीं हुई ट्रेट्स की, ट्रेट्स आपस में ब्लेंड नहीं हुए। ठीक है, अगर उभर के आए तो ओरिजिनली उभर के आए। देखो F1 में तो उभर के ही नहीं आया ड्वार्फ, F1 जनरेशन में तो ड्वार्फ उभर के ही नहीं आया, और F2 जनरेशन में जब वो आया तो वहां कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, वो बिल्कुल तब उभर के आया जब वो जैसा ड्वार्फ है बिल्कुल अपने पेरेंट से आइडेंटिकल ही बन के आया। So there was no blending, there was no plant which was of medium height, understood, or in between height. So same results he got from every cross which he did of the 7 characters that he was studying in the pea plant. So what was the genotype he was getting there? What was the phenotype he was getting? The phenotype was 3:1. The proportion, the result was 3:1. That means 3 tall and 1 dwarf. Okay.